Welcome students. You must have completed the first part of chapter 6. Today I will take you in its second part. In the last part we had read that Miss Mason had read out a letter written by Jan Petronsky, Vanda's father, that Vanda with her brother had left the school. At this Maddie became too much disturbed and Peggy too a little. They both decided to go Boggins High to get Vanda Petronsky. They both went there but did not find Vanda Petronsky as she had left the town. Then Maddie had taken a hard decision to be with the sight of that person who would be a target for anyone for making a fun of. Now we read what had happened then. On Saturday, Maddie spent the afternoon with Peggy. They were writing a letter to Vanda Petronsky. It was just a friendly letter telling about the contest and telling Vanda she had won. फिर सैटरडे जब अगला आता है तो दोपहर में पैगी और मैडी दोनों एक साथ रहती हैं और वे दोनों एक वांडा पेट्रॉन्स्की को एक लेटर लिख रही थी। वो लेटर एक फ्रेंडली लेटर था, कोई कंप्लेन लेटर नहीं था जिसमें प्रतियोगिता की चर्चा की गई थी। They told her how pretty her drawings were and they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. लेटर में उन्होंने लिखा और लिखकर ये पूछा कि क्या वो उस स्थान को पसंद करती थी जहाँ वह रहती थी और उसकी नई टीचर कैसी थी। They had meant to say they were sorry, but it ended up with their just writing a friendly letter, the kind they would have written to any good friend, and they signed it with lots of fakes for love. दरअसल वे दोनों उस लेटर के माध्यम से उसके प्रति खेद प्रकट करना चाहती थी, किंतु वह लेटर एक फ्रेंडली लेटर ही बन गया, ऐसे जैसे कि वे एक अच्छी सहेली को लिख रही हों। अंत में उन्होंने बहुत सारे एक्स लिख डाले। They mailed the letter to Boggins High, writing please forward on the envelope. उन्हें नए घर का पता तो मालूम नहीं था, इसलिए इन्वेलप पे उन्होंने लिख दिया प्लीज़ फॉरवर्ड, कृपया अग्रेषित करें बॉगिंस हाइट के एड्रेस पे। Days passed and there was no answer, but the letter did not come back, so maybe Vanda had received it. दिन बीतते गए किंतु कोई उत्तर नहीं आया। इससे यही लगा कि संयोग से शायद वांडा को यह मिल गया होगा। Perhaps she was so hurt and angry, she was not going to answer. You could not blame her. शायद वह इतनी दुखी और क्रोधित हुई होगी कि उसने उत्तर नहीं देना चाहा होगा, इसलिए आप उसे दोष नहीं दे सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. अब सप्ताह भी बीतते गए किंतु वांडा ने कोई उत्तर नहीं दिया। Peggy had begun to forget the whole business and Maddie put herself to sleep at night making speeches about Wanda, defending her from great crowds of girls who were trying to tease her with how many dresses have you got. पेगी तो सारी बात को भूलने लगी थी, लेकिन मैडी को चैन नहीं था। वो रात की में जब सोती थी तो नींद में ही केवल चिल्लाती रहती थी। उसे ऐसा फील होता था जैसे वह वांडा पेट्रॉन्स्की को उन लड़कियों की भीड़ से बचा रही है जो उसे यह कहकर चिढ़ा रही होती थीं कि तुम्हारे पास कितने ड्रेसेस हैं। And before Wanda could press her lips together in a tight line, the way she did before answering, Maddie would cry out, "Stop!" Then everybody would feel ashamed the way she used to feel. और उससे पहले कि वांडा अपने होश शक्ति से एक सीध में दबाती, जैसा कि वह हमेशा उत्तर देने से पहले किया करती थी, मैडी चिल्ला उठती, रुको। तब हर कोई शर्म महसूस करता, जैसा कि मैडी हमेशा महसूस किया करती थी। Now it was Christmas time and there was snow on the ground. अब क्रिसमस का समय आ गया था और बर्फ पड़ी हुई थी फर्श पे। क्रिसमस पेस एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्लासरूम भी क्रिसमस बेल और छोटे जो क्रिसमस ट्री होता है उससे सजा हुआ था। On the last day of school before the holidays, the teacher showed the class a letter she had received that morning.
हॉलीडे शुरू होने से पहले लास्ट डे टीचर ने क्लास के स्टूडेंट्स को एक लेटर दिखाया जो उन्हें सुबह प्राप्त हुआ था। यू रिमेंबर वांडा पेट्रोंस्की, द गिफ्टेड लिटिल आर्टिस्ट हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? क्या आपको वांडा पेट्रोंस्की याद है, जो कि एक प्रतिभाशाली कलाकार थी और जिसने कॉन्टेस्ट को जीता था? वेल, शी हैज़ रिटन मी एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू। इसलिए मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे उसका एड्रेस मिल गया है, क्योंकि उसने मुझे एक लेटर लिखा है। मैं वह लेटर आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सैट अप विथ अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसन्ड इंटेंटली। सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स तो वांडा पेट्रोंस्की से मिलना चाहते थे, इसलिए सभी शांति से बैठ गए। अब लेटर में कुछ ऐसा लिखा था। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13? आप कैसी हैं? रूम 13 के सभी कैसे हैं? प्लीज़ टेल द गर्ल्स they can keep those 100 dresses because in my new house I have 100 new ones all lined up in my closet. कृपया आप उन लड़कियों को कहिए कि वे उन 100 पोशाकों को रख सकती हैं, क्योंकि मेरे नए घर में नई 100 और पोशाकें हैं जो कि मेरी अलमारी में एक पंक्तिबद्ध खड़ी हैं। I would like that girls Peggy to have the drawing of the green dress with the red trimming and her friend Maddie to have the blue one. अब मैं चाहती हूँ कि पैगी हरे वाली पोशाक को ले ले जो लाल सजावट वाली है, और मेरी उसकी मित्र मैडी नीली वाले रखे। For Christmas, I miss that school and my new teacher does not equalize with you. क्रिसमस में मैं आप सबों को मिस करूँगी और स्पेशली आपको, क्योंकि नई टीचर आपकी जैसी नहीं है। मेरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, योर्स ट्रूली वांडा पेट्रोंस्की। और लास्ट में वो सबको मैरी क्रिसमस की बधाई देती है। On the way home from school, Maddie and Peggy held their drawings very carefully. स्कूल से घर वापस आते समय मैडी और पैगी ने अपनी तस्वीरों को बड़ी सावधानी से पकड़ रखा था। ऑल द हाउसेस हैड रीस एंड हॉली इन द विंडो। सभी घर, क्रिसमस का समय था इसलिए सभी घरों की खिड़कियों में फूलदान और सदाबहार की डंडियाँ थीं। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड एंड इन द विंडो कैंडी पिपरमिंट स्टिक्स एंड कॉर्नुकॉपियास ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग। किराने की दुकान के बाहर सैकड़ों क्रिसमस वृक्ष सजे थे और अंदर पिपरमिंट कैंडी और चमकते पारदर्शी कागज़ पर लगे सजावटी सामान थे। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट्स शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो। हवा में क्रिसमस की महक थी और प्रत्येक जगह चमकती रोशनी के कारण अलग अलग रंग परावर्तित हो रहे थे, रिफ्लेक्ट हो रहे थे। बॉय said Peggy, this shows she really like us. तो वो इस तरह से संबोधन करती है, ये एक्सक्लेमेशन है, और वो कहती है इसे लगता है कि वास्तव में वो हमें पसंद करती थी। उसने लेटर लिखा, लेटर में हम लोगों का नाम लिखा, इससे तो ऐसा ही लगता है। It shows she got our letter and this is her way of saying that everything is right and that's that. इससे ये लगता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है और ये सब उसके कहने का तरीका है कि सब ठीक है। आई होप सो, सेड मैडी सैडली। लेकिन मैडी उदास होकर कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। सी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुडंट एवर रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वो उदास इसलिए थी कि वह जानती थी कि अब तो निश्चित है कि वह वांडा पेट्रोंस्की जो पॉलिश लड़की थी, अपने होठ को वो सख्ती से बंद करती थी, उससे वह कभी नहीं मिल पाएगी और उनके बीच जो संबंध बिगड़ गए थे वो कभी ठीक नहीं हो सकते। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flower wallpaper in the bedroom. वह घर गई और अपने बेडरूम में गुलाबी वॉलपेपर पर उसने उस तस्वीर को लगा दी। द सैबी रूम केम अलाइव फ्रॉम द ब्रिलियंसी ऑफ द कलर्स। उसका वह रूम साधारण सा था, किंतु वो साधारण भद्दा कमरा उसके शब्दों में रंगों की चमक से जीवंत हो उठा। मैडी सैट ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग।
She had stood by and said nothing, but Wanda had been nice to her anyway. मैडी बैठ गई अपने बेड पे और वो तस्वीर को देखने लगी। वह खड़ी रहती थी और कुछ नहीं कहती थी, परंतु फिर भी वांडा उसके प्रति अच्छी थी। Tears blurred her eyes and she gazed for a long time at the picture. आंसुओं से उसकी आंखें धुंधला गई थी और वह निहार काफ़ी देर तक उस तस्वीर को देख रही थी। Then hastily she rubbed her eyes and studied it intently. लेकिन अचानक उसे कुछ ऐसा दिखता है कि जल्दी से उसने अपनी आंखों को मला और बहुत ध्यान से उस चित्र को देखा। The colors in the dress were so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. उस ड्रेस के रंग इतने तेज थे कि तस्वीर में एक चेहरा भी बना था, उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। But it looked like her, Maddie. It really looked like her own mouth. और वो चेहरा जो उस पे बना था ड्रेस पे, वो मैडी की तरह था। Why it really looked like her own self. ये उसके जैसा क्यों दिख रहा है? Wanda had really drawn this for her. Excitedly, she ran over to Peggy. इसका मतलब वांडा ने यह ड्रेस स्पेशली उसके लिए बनाया है। अब वह उत्तेजित होकर पेगी के घर की ओर भागती है। पेग, सी सेड, लेट मी सी योर पिक्चर। पेग, जरा मुझे अपनी पिक्चर को देखने दो। What's the matter? asked Peggy as they clattered up to her room where Wanda's drawing was lying face down on the bed. मैडी ने तो आके अपने रूम में उस तस्वीर को टांग दिया, उसे गौर से उसे वाच की तो उसे पता चला, लेकिन पेगी का जो ड्रेस था उसके बेड पे औंधे मुंह पड़ा था। तो फिर ये दोनों दौड़ कर उस रूम में गए। मैडी केयरफुली रेज्ड इट। मैडी ने सावधानी से उसे उठाया। लुक, सी टू यू, दैट्स यू, सी एक्सक्लेम्ड। और उस ड्रेस पे भी पेगी का चेहरा बना था। इसलिए मैडी कहती है, देखो उसने तुम्हें बनाया है, तुम्हारी तस्वीर को ड्रॉ किया है। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पेगी। और वास्तव में वो उस ड्रेस पे बना चेहरा पेगी का ही चेहरा था। What did I say? said Peggy. She must have really liked us anyway. तो पेगी कहती है, मैंने कहा था ना, वह कुछ भी हो, वो हमें पसंद अवश्य किया करती थी। या सी मस्ट हैव, एग्रीड मैडी। मैडी भी इस पर एग्री होती है, कहती है हाँ वह अवश्य करती होगी। एंड सी blinked away the tears that came every time she thought of Wanda standing alone in that sunny spot in the schoolyard, looking stolidly over at the group of laughing girls after she had fucked off, after she said so 100 of them all lined up. मैडी ने सहमति जताई और उसने अपने आंसुओं को आंखें झपका कर दूर किया। और हर बार जब भी स्कूल के आंगन में धूप में खड़ी होती तो वह वांडा के बारे में ही सोचती रहती और लड़कियों के समूह को शांति से देखती हुई उसके चले जाने के बाद वह कहती, वास्तव में 100 सब कतार में लगी है। ये सभी फीलिंग मैडी की फीलिंग है। कहने का मतलब वो चाह कर भी खुद को एक्सक्यूज़ नहीं कर पाती है, वो फॉरगिव खुद को कर नहीं पाती है। बार बार उसका मन बेचैन हो जाता है कि वो वांडा नहीं है, फिर भी वो रूम में खड़ी होती है, रूम में नहीं, फील्ड में खड़ी होती है और उसके फीलिंग को खुद ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है या फिर फील करने की कोशिश करती है। ओके स्टूडेंट्स, इन दिस वे दिस चैप्टर हैज़ बीन completed. You will make short questions within the chapter and carefully read again this chapter. In my next video, I will give some guidelines for making all the answer of all the questions. Thanks.